Am I audible to all of you? Okay, thank you. We are talking about a nutritional anemia, am I right? So, once again, just pay attention to these figures, these cutoff points, okay, which will help us to decide whether the particular person is anemic or not. Yeah, we have discussed all these things related to global problem. Even we have discussed its prevalence in developing countries. Okay, even in India, we have seen all these things. Yeah, we are just talking about the adolescent girls. Okay, so regarding adolescent girls, one of the most important high risk group in India that you are supposed to know. Okay, so whenever we talk about adolescent girls, okay, whatever different girls are there which are in this group, they are having higher risk. And if we see the prevalence, okay, prevalence of anemia in this age group, it is very high. Okay, so this statement, it is based on the survey. Okay, तो जो survey conduct किया गया था, okay, here you can see abbreviation DLHS. Okay, so here DLHS, it stands for district level health survey. तो ये जो हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2002 और 2004 में, तो इसके जो रिजल्ट्स थे, तो द रिजल्ट्स व्हाट इट इंक्लूड्स is in this age group the prevalence is 72.6%. Okay, so high prevalence, what we can say in this एडोलेसेंट गर्ल्स. ओके, तो 70 से भी ज़्यादा एडोलेसेंट गर्ल्स है इंडिया में जो एनेमिक है. रेफरेंस फॉर दिस नंबर इज फ्रॉम DLHS, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ सर्वे. और जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, इवन इफ दे आर एजुकेटेड, even if they are belonging to high socio-economic class, anemia was detected in these girls also. Okay, so this prevalence of anemia in adolescent girls, it is not affected by educational status, it is not affected by economic status. Okay, so once again I am repeating, don't forget, this is the most important high risk group as far as anemia is concerned. Okay, and our focus must be on adolescent group as far as prevention or control of nutritional anemia is concerned. Okay, तो हमें फोकस कहाँ पे करना है? फर्स्ट थिंग इज टू प्रिवेंट एनीमिया इन एडोलेसेंट गर्ल्स. ओके, सेकेंड थिंग, अगर है भी तो एज अर्ली एज पॉसिबल वी मस्ट डिटेक्ट द केसेस ऑफ एनीमिया. ओके, तो अर्ली डिटेक्शन है और डिटेक्शन के बाद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है इनका. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देन इन एडिशन to these interventions, that is early detection and treatment, simultaneously we are supposed to pay attention to certain social aspects concerned with adolescent girls. ओके, तो यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो होना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ अर्ली मैरिएज. ओके, तो ये एज ग्रुप में इंडिया में मैरिएजेस नहीं होने चाहिए. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू प्रिवेंट अर्ली कंसेप्शन. ओके, तो अर्ली कंसेप्शन या फिर एडोलेसेंट एज में प्रेगनेंसी या कंसेप्शन है, इसके ऊपर हमें फोकस करना है. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई रिस्क ग्रुप in India. Okay, rural urban differences already we have seen. Okay, the children, they are having higher risk. Okay, and the risk is more in rural areas as compared to urban areas. Now quickly we will see what is the etiology of nutritional anemia. Okay, so most common cause of nutritional anemia, it is the inadequate intake of iron. Okay, तो आयरन का इनटेक inadequate है. Second important reason which is concerned with iron deficiency anemia, to be specifically, okay, sometimes it may happen that the people who are taking a vegetarian diet, okay, so they may have adequate intake of iron. Okay,
बट इनटेक तो एडिक्वेट है, लेकिन उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम होता है. ओके, तो वेरी स्मॉल परसेंट, व्हाट वी कैन से, इट इज लेस देन 5% of iron, which is less than 5% of iron is absorbed. ओके, सो यहाँ पे दूसरा जो फैक्टर है, डाइट में आयरन तो एडिक्वेट है, लेकिन वो उतना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है. ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू द सेम, व्हाट वी कैन से, is consumption of those sources of iron having poor bio availability. ओके, तो जो आयरन के सोर्सेस हम ले रहे हैं उसका बायो अवेलेबिलिटी पुअर है. ओके, और देर कैन बी सम प्रॉब्लम विद द एब्जॉर्प्शन. ओके, इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन है. ओके, आयरन से रिलेटेड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज लॉस ऑफ आयरन. ओके, तो आयरन के लॉसेस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस. सो इट कैन बी फिजियोलॉजिकल लॉस. ओके, to be specifically, you are supposed to know the blood loss which occurs during menstruation and the blood loss which occurs during the process of childbirth. So again here, if the female, she repeatedly get pregnant, okay, so repeated pregnancy can definitely contribute to iron deficiency anemia. Or the causes, they can be pathological. Okay, pathological blood losses can also occur, as we have discussed it in case of malaria. Okay, जहाँ पे RBC रप्चर हो जाते हैं. ओके, या फिर हुकवर्म इन्फेस्टेशन है, तो ये जो वर्म है इट फीड्स मेनली ऑन इंटेस्टाइनल जूस विच इज रिच इन आयरन. ओके, तो दीज आर द सर्टन थिंग्स. सर्जिकल एस्पेक्ट्स आप देखते हो तो हिमोरॉइड्स हो सकता है, पर रेक्टल ब्लीडिंग हो सकता है. ओके, विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू iron deficiency anemia. Okay, second important nutrient deficiency of which can lead to nutritional anemia is folic acid. Okay, तो folic acid में यहाँ पे on the contrary to iron, what we can say, whenever the diet it is poor इन लीफी वेजिटेबल्स, तो डाइटरी इंटेक है लीफी वेजिटेबल्स का, एक तो वो पुअर है. सेकेंड है हमारे कुकिंग प्रैक्टिसेस. ओके, फॉलिक एसिड में हमने सब डिस्कस किए हैं, तो फॉल्टी कुकिंग प्रैक्टिसेस है तो इट कैन कॉज लॉस ऑफ फॉलिक एसिड. ओके, थर्ड डेफिशिएंसी इट इज विटामिन B12. ओके, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो ये डेफिशिएंसी आपको सिर्फ डाइट हिस्ट्री पूछ के सस्पेक्ट करनी है. ओके, सो ऑल दोज पीपल विच आर वेगन्स, ओके, जो वेगन्स है इनमें ये डेफिशिएंसी बहुत बहुत कॉमन है, एंड जो वेजिटेरियंस है. ओके, क्योंकि अभी आपको पता है ओनली एनिमल सोर्सेस आर देयर फॉर दिस विटामिन. सो ऑल दोज वेगन्स, ऑल दोज वेजिटेरियन पीपल, ओके, दे कैन डेवलप डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. अगर हम ये डेफिशिएंसीज को कंपेयर करते हैं, ओके, तो आयरन की डेफिशिएंसी या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो कौन सा ज़्यादा कॉमन है इंडिया में? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इट इज़ मोर कॉमन इन इंडिया. ओके, तो अगेन इसमें भी हमें वापस फोकस करना है सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर. ओके, तो अगर अभी हमें तो प्रिवालेंस पता है, बहुत हाई प्रिवालेंस है, बहुत सारे हाई रिस्क ग्रुप्स है इंडिया में. ओके, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो एनेमिक है. ओके, तो क्या हार्मफुल इफेक्ट हमें दिखाई देंगे? व्हाट डिफरेंट डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, व्हाट डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट्स वी कैन सी. ओके, तो एक हमारे पास जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है वो है प्रेग्नेंट वेमेन. ओके, जितने भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फीमेल्स है और उनमें से जितने प्रेग्नेंट है. ओके, तो इनमें अगर न्यूट्रिशनल एनीमिया है, और सिंपली वी कैन से इफ देयर इज न्यूट्रिशनल एनीमिया ड्यूरिंग pregnancy. Okay, so this is the most important factor which can contribute to maternal mortality. okay, तो इसकी वजह से मैटरनल मोर्टालिटी, ओके, मदर की डेथ हो सकती है. एंड इफ यू सी द प्रपोर्शन, ओके, सो द मैटरनल मोर्टालिटी इन इंडिया due to anemia, this is 19%. Okay, so 19% mothers may die just because of nutritional anemia. Okay, so maternal mortality हम जब बोलते हैं तो it is concerned with the death of the woman during pregnancy or 42 days after delivery. Okay, तो
ये पूरे टाइम में कभी भी अगर डेथ हो जाए, ओके, तो वी आर कंसिडरिंग दिस एज मैटरनल मोर्टालिटी, ओके। तो डेफिनेटली 19% इट्स बिग नंबर, ओके, वेयर द डेथ्स ऑफ मदर मे ऑकर ड्यू टू न्यूट्रिशनल एनीमिया। सेकेंडली सिर्फ मैटरनल मोर्टालिटी नहीं है, इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू पेरीनेटल मोर्टालिटी ऑल्सो, ओके, इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू नियोनेटल मोर्टालिटी, ओके। तो जितने भी बच्चे आफ्टर द बर्थ, ओके, विद इन 4 वीक्स जिनकी डेथ हो जाती है, ओके, तो नियोनेटल मोर्टालिटी है, आगे जाके इन्फेंट मोर्टालिटी है, 1 साल तक ये बच्चों की डेथ हो सकती है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ओके। So what we said, nutritional anemia during pregnancy, it can contribute to maternal mortality, it can contribute to perinatal mortality, it can contribute to neonatal mortality, or even it can contribute to infant mortality, and there will be increase in these mortalities, okay। even अगर प्रेग्नेंट फीमेल एनेमिक है तो वन मोर कॉम्प्लिकेशन वी कैन फेस, ओके, that is the postpartum hemorrhage. So there is possibility of PPH in such females, okay। And one more thing which we recently discussed, okay, in last lecture, okay, अगर pregnant women anemic है तो it can lead to premature birth और इट कैन लीड टू लो बर्थ वेट बेबीज, ओके। तो प्रीमेच्योर बर्थ है या फिर लो बर्थ वेट बेबीज है, आगे जाके उन्हें क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अभी ये आपको पता है, ओके। सो यू कैन कम टू नो द सीरियसनेस ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। सो डिफरेंट थिंग्स आर देयर विच आर कंसर्न विद द न्यूट्रिशनल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके। सेकेंड जो हार्मफुल इफेक्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो इट कैन अफेक्ट इम्यून फंक्शन, okay, so there can be impairment of immune function and this can increase the susceptibility of that individual to infection, okay। तो infection की possibility ज़्यादा बढ़ने वाली है, okay। and the last important thing is even if there is mild anemia है, okay, mild भी anemia है तो भी जो work capacity है of that individual it is reduced। एंड वॉट वी कैन से जितना सिवियर एनीमिया है उतना ज़्यादा वर्क कैपेसिटी का रिडक्शन होगा, ओके। सो द मोर सिवियर एनीमिया ग्रेटर इज द रिडक्शन इन वर्क कैपेसिटी, ओके। तो डेफिनेटली एनीमिया के जो इफेक्ट्स है दे आर हार्मफुल इफेक्ट्स, ओके। नाउ व्हाट वी कैन डू, अभी हमें क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम है ये सीरियस प्रॉब्लम है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सीरियस चैलेंज इज देयर इन फ्रंट ऑफ आवर कंट्री। तो हमें इसे कंट्रोल करना है, हमें इसे प्रिवेंट करना है, ओके। तो व्हाट वी कैन डू फॉर दिस, ओके। सो फॉर दिस वी कैन हैव डिफरेंट इंटरवेंशंस, ओके। तो हमारे पास डिफरेंट इंटरवेंशंस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एनीमिया को डिटेक्ट करना है, ओके। तो जो सिंपल टेस्ट किया जाता है दैट इज हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन का लेवल देखेंगे। इससे हमें सबसे पहले ये पता चलेगा कि दैट इंडिविजुअल वेदर ही इज और शी इज एनेमिक और नॉट, ओके। तो एनेमिक है या नहीं है ये पता चलेगा। उसके बाद आपको हीमोग्लोबिन के लेवल देखने हैं, ओके। तो हीमोग्लोबिन के लेवल देखने के बाद हम वापस ग्रेडेशन करेंगे, ओके। तो किसी को सीवियर एनीमिया है या फिर जो लोग ऐसे हैं जिनको माइल्ड और मॉडरेट एनीमिया है ये हम देखेंगे, ओके। तो एक बार HB लेवल हमें पता चल जाए तो हमें वापस से सब कैटेगराइजेशन करना है। जो लोग जिनको सीवियर एनीमिया है, ओके, उनका हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, ओके। तो 10 से कम जिनका है वी आर गोइंग टू कॉल देम एज सीवियर एनीमिक, ओके। और 10 से 12 में अगर हमें वैल्यू मिलता है तो ये माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया है ऐसा हम बोलेंगे, ओके। तो ये पता चलने के बाद कौन से इंटरवेंशंस हमें अप्लाई करने हैं, ओके। तो सीवियर एनीमिया है तो सम पेशेंट्स मे रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओके। तो इनको पॉसिबिलिटी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग सकता है। लेकिन जो माइल्ड टू मॉडरेट में है जिनका हीमोग्लोबिन लेवल 10 to 12, ओके, ग्राम्स पर डेसीलीटर के बीच में है, उनके लिए हमें क्या करना है, वी आर सपोज टू गिव आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तो इन्हें हमें क्या देना है, आयरन देना है और
फॉलिक एसिड देना है। ओके, तो आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन डिटेल्स हम आगे आने वाले प्रोग्राम में देखेंगे। ओके, उसके साथ साथ जो सेकेंड इंटरवेंशन हमें करना है वो है आयरन फोर्टिफिकेशन। ओके, आयरन फोर्टिफिकेशन जैसे आयोडीन फोर्टिफिकेशन, आयोडाइज सॉल्ट हमने पढ़ा था कल। ओके, सो सिमिलरली ये आयरन का फोर्टिफिकेशन है। तो यहाँ पे बेसिकली ये किसने रेकमेंड किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो एनीमिया का प्रिवेलेंस या फिर इसका इंसिडेंस हमें कम करना है, या फिर सिंपली यू कैन से एनीमिया का जो प्रॉब्लम है उसे हमें कंट्रोल करना है। ओके, तो आयरन फोर्टिफिकेशन का जो रिकमेंडेशन है, दिस इज नॉट गिवन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सेप्टेड दिस अप्रोच, ओके, टू रिड्यूस प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया। तो इंडिया में हमें एनीमिया का प्रिवेलेंस कम करना है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये फूड फोर्टिफिकेशन, आयरन फोर्टिफिकेशन जो है इसे एक्सेप्ट किया है। ओके, तो जैसे कि हम आयरन फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, आपको पता है। ओके, सो डिफरेंट फूड आर्टिकल्स आर देयर विच वी कैन फोर्टिफाई विथ आयरन, और जो हम यूज करते हैं दैट इज सॉल्ट। ओके, सो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में हमने बोला था डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट और ट्विन फोर्टिफाइड सॉल्ट। तो फूड आर्टिकल एक ही है जिसमें हम आयरन भी डालेंगे, जिसमें हम आयोडीन भी डालेंगे। ओके, तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने आयरन फोर्टिफिकेशन सजेस्ट किया है? ओके, तो ये इंस्टीट्यूट का अनदर एब्रीविएशन दैट यू आर सपोज टू नो, दिस इज वन मोर एब्रीविएशन दैट यू मस्ट नो, दिस इज NIN, this is NIN. NIN, it stands for National Institute of Nutrition. Okay, National Institute of Nutrition जो हैदराबाद में लोकेटेड है, ये इंस्टीट्यूट ने जो रिकमेंडेशन दिया है आयरन फोर्टिफिकेशंस का, वो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। ओके, सो सेकेंड इंटरवेंशन जो है वो हमने देखा फोर्टिफिकेशन, ओके, ऑफ फूड विथ आयरन। इसके साथ साथ अभी जहाँ पे प्रिवेलेंस कम है, जो लो प्रिवेलेंस स्टेट है, ओके, इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द स्टेट्स हैविंग हाई प्रिवेलेंस एंड स्टेट्स हैविंग लो प्रिवेलेंस। तो जहाँ पे लो प्रिवेलेंस है वहाँ पे हम कुछ बाकी के स्ट्रेटेजीज भी ट्राई करेंगे, जैसे कि लोगों का डाइटरी हैबिट हमें चेंज करना है। ओके, वी आर सपोज टू गिव न्यूट्रिशन एजुकेशन। ओके, लोगों को अवेयर करना है न्यूट्रिशन के बारे में, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर इज द कंट्रोल ऑफ पैरासाइट। तो जो कुछ भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उसे हमें कंट्रोल करना है। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए जो एक्टिविटी की जाती है दैट इज कॉल्ड एज डीवर्मिंग। ओके, ये एक्टिविटी को हम बोलते हैं, या फिर ये इंटरवेंशन को हम बोलेंगे डीवर्मिंग। ओके, तो डीवर्मिंग में ये ग्रुप जो आपको दिखाई दे रहा है, ओके, तो ये सिर्फ डोजेस के लिए है। ओके, तो डोज ड्रग का चेंज होगा। तो जो ड्रग यूज किया जाता है अभी डीवर्मिंग के लिए इंडिया में, नेम ऑफ दिस ड्रग इज अल्बेंडाजोल। ओके, अल्बेंडाजोल है ये ड्रग है, ये हमें डीवर्मिंग के लिए देना है। ओके, तो कब कब देना है दैट यू आर सपोज टू नो। तो सिर्फ हम प्रेग्नेंट वीमेन को एक्सक्लूड करेंगे। ओके, तो प्रेग्नेंट वीमेन को एक्सक्लूड करके अगर हम 5 साल, 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं, या फिर 5 साल से 9 साल तक के बच्चे हैं, या फिर एडोलेसेंट्स 10 से लेके 19 ईयर तक के हैं, इवन आगे जाके ये ग्रुप के एज थोड़े अलग अलग है दैट यू आर सपोज टू मेमोराइज हियर। ओके, विमेन जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में इंक्लूड किए हैं, ओके, वो 20 to 49 है। तो पहला ग्रुप हमने देखा 1 से 5 साल तक के बच्चे, दूसरा ग्रुप है 5 से 9 साल, 10 से 19, और फिर 20 से 49। लेकिन ये ग्रुप में वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन प्रेग्नेंट एंड नॉन लैक्टेटिंग विमेन। ओके, तो इन सबको साल में 2 बार, ओके, बाय एन्युअल, ओके, बाय एन्युअल इज ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार हमें अल्बेंडाजोल देना है। ओके, तो अभी वापस आपका फोकस रहेगा रिलेटेड विद द डोज। ओके, आपको जो डोज देना है उसके लिए आपको सिर्फ एक एज ग्रुप को याद रखना है। ओके, अगर आपने पास जो बच्चा आता है वो 1 से 2 साल तक का है,
ओके। तो वो बच्चे के लिए सिर्फ हमें डोज हाफ करना है, ओके। तो 200 मिलीग्राम देना है, ओके। और बाकी सबके लिए 400 मिलीग्राम इज द डोज, ओके। प्रेगनेंसी में क्या करना है हमें? प्रेगनेंसी में ड्रग इज सेम, ओके, अल्बेंडाजोल, इवन इट्स डोज इज सेम 400 मिलीग्राम, लेकिन इसका एक ही डोज हमें देना है। और प्रिफरेबली वी आर गोइंग टू गिव दिस डोज आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ओके, एंड प्रिफरेबली ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, ओके। तो उसे एक टैबलेट देनी है अल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम की, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द control of nutritional anemia. So don't forget, at least name you are supposed to know if examiner ask you regarding this, okay. So deworming, या biannual administration of the drug albendazole to different groups, okay। सिर्फ प्रेगनेंसी ही है, प्रेग्नेंट women है जहाँ पे हम सिर्फ एक ही डोज देते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें वो डोज देना है, okay। Now there are different programs that we are supposed to discuss in relation to एनीमिया, ओके। तो एनीमिया का प्रॉब्लम है, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ आवर कंट्री, ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, ओके। तो कौन कौन से ये प्रोग्राम है, ओके। सो दिस प्रोग्राम बेसिकली, one program is नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, ओके, नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद और एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, WIFS, ओके। सो दिस इज व्हाट? दिस इज वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ओके। तो WIFS में हमारा जो फोकस है दैट इज ओनली ऑन एडोलेसेंट्स, ओके। WIFS में एडोलेसेंट के ऊपर फोकस है, ओके। तीसरी जो एक्टिविटी स्टार्ट की दैट इज NIPI, okay, NIPI, it stands for National Iron Plus Initiative, okay, National Iron Plus Initiative। तो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया 2013 में, ओके, इन द ईयर 2013। तो यहाँ पे क्या करना था? जस्ट टू रिड्यूस इंसिडेंस एज वेल एज प्रिवालेंस ऑफ एनीमिया इन ऑल स्टेजेस। तो अभी ये प्रोग्राम में सभी लोगों के ऊपर ध्यान दिया है, तो हाई रिस्क भी है और जिनको रिस्क नहीं है उन्हें भी इंक्लूड किया है, ओके। तो इसमें एडोलेसेंट्स भी है, नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग विमेन भी है, ओके। तो फोकस जस्ट चेंजेस, या। सो वन मोर चेंज हियर, I just request Roman to start with attendance. I can see her name. I can see her name. I think she is disconnected. Some problem is there. Hmm.
Yes. ओके, ज्वाइन हुआ था। आई कैन सी हर नेम। डिस्कनेक्ट हुआ है या शी जॉइन लेट? आई डोंट नो। आई थिंक शी जॉइन लेट। तो जस्ट वेरीफाई दिस। जस्ट वेरीफाई दिस। नॉट देयर। नहीं है शायद। ओके। ओके, प्लीज permit me to end this meeting, and you all please rejoin.
Am I audible? Am I audible? Okay, thank you. Yes. तू काय ऐकलं त्यातनं सांग मला काहीतरी. तुला काय समजलं? हम्म. हम्म. काय? परत एकदा सांग. हो. असं काही म्हटलं मी? हम्म. Do you all agree with her statement? Do you all agree with her statement? Yes, any one of you who is agree with her statement, please raise your hand so that I will come to know. I am forgetting many things in relation to my age, so I might have forgotten what I talked. How many of you agree with her statement? Please raise your hand so that I can come to know. If all of you, those who are having some connectivity problem or you are purposefully joining late or whatever the things may be with you, please be attentive. Whatever things you listen it carefully. Okay? Yeah. So now here one more important thing that we are going to concern. Okay, so three initiatives. Okay, so what government of India has tried, that already we have discussed. Okay, regarding national nutritional anemia control program, weekly iron folic acid supplementation, and national iron plus initiative. Okay, so ये सब हमने देखा है. Now one more report we are supposed to see so that we can understand this problem of nutritional anemia in India. Okay, so what abbreviation you can see here is NFHS. Okay, so NFHS again most important abbreviation that you are supposed to know. Okay, so this is National Family Health Survey. Okay, तो इंडिया में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कंडक्ट किया जाता है, जो फोर्थ सर्वे हुआ 2015 और 16. ओके, तो उसका रिपोर्ट हमें क्या बताता है, व्हाट दिस सर्वे इज सेइंग. ओके, सो अगेन डिफरेंट ग्रुप में हमें एनीमिया देखना है. ओके, तो 6 मंथ से लेके 5 साल तक. ओके, 58.4%. सो ऑलमोस्ट वी कैन से 58% चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप दे आर एनेमिक. ओके, नॉन प्रेग्नेंट विमेन, तो ये सर्वे के लिए जो एज ग्रुप किया है, अभी आगे जाके वॉट एवर थिंग्स आई विल टॉक रिगार्डिंग ग्रुप्स, दिस इंक्लूड्स 15 to 49 years. Okay, so non-pregnant women 15 to 49 years 53.1%. Okay, pregnant women 50.3%. And if we include all women, so they might be pregnant, lactating, non-pregnant. Okay, ये age group में 15 to 49 53% anemia has been reported. And even in men, okay, 15 to 49 years के males अगर हम लेते हैं, men अगर हम देखते हैं तो 22.7. ओके, यहाँ पे एनीमिया कम है मेल्स में, बट स्टिल इट इज सीन इन इंडिया. ओके, सो ऑन एन एवरेज व्हाट वी कैन से, the problem it is more than 50% in different age group. Okay, so हाफ से भी ज़्यादा लोग हैं ये different age group में which are anemic in India. Okay, one more report if you will see, it's a global nutrition report. Okay, ये जो global nutrition report है, दिस इज 2017 का ये रिपोर्ट है. तो ये रिपोर्ट हमें क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया इज फेसिंग सीरियस बर्डन ऑफ एनीमिया. ओके, तो एनीमिया का जो बर्डन है इंडिया में, ये सीरियस बर्डन है जो हमारा देश फेस कर रहा है. ओके, एंड एज पर दिस रिपोर्ट मोर देन half of the women,
that is 51% of the women. 51% of the women of reproductive age group they are anemic. ओके, तो सिर्फ इसका एक ही समरी है, 50% से ज़्यादा लोग हैं इंडिया में जो एनेमिक है. ओके, इन रिलेशन टू डिफरेंट ग्रुप्स. Yeah, this is one of the most important program that you are supposed to know. This is National Nutritional Anemia Prophylaxis Program. Okay, so we are talking about National Nutritional Anemia Prophylaxis Program. Okay, so this program was launched by Maternal and Child Health Division. Okay, this is another abbreviation that you are supposed to know, MCH, Maternal and Child Health Division of Ministry of Health and Family Welfare. Okay, so this program was introduced during 4th 5-year plan. Okay, चौथी जी पंचवार्षिक योजना शासनाने जाहीर केली त्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये हा प्रोग्राम लॉन्च केला गेला. ओके, सो दॅट वॉज अराउंड 1970. Okay, so we are talking about the program which was introduced in the year 1970. Okay, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया? To prevent nutritional anemia. Okay, so this was introduced just for prevention of nutritional anemia in India. Okay, तो ये प्रोग्राम में क्या करते हैं हम? अंडर दिस प्रोग्राम वी गिव आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन. ओके, तो हमें क्या करना है? आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देना है. डिटेल्स आगे जाके आगे आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे. सिर्फ यहाँ पे एक इंटरवेंशन आपको याद रखना है. अंडर दिस प्रोग्राम supplementation of iron folic acid tablet or syrup is there. Okay, so this is given to pregnant women, lactating women. Okay, and even it is given to children. Okay, children up to the age of 12 years they are covered under this program. ओके, तो इसके लिए हमें हीमोग्लोबिन लेवल देखना है और जिनको माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया है उन्हें हमें आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देना है. अभी माइल्ड टू मॉडरेट के लिए कौन सी एचबी लेवल हम कंसिडर करेंगे दैट यू नो. ओके, तो जिनका एचबी 10 to 12 के बीच में है उन्हें वी आर सपोज टू गिव दिस आयरन फॉलिक एसिड. ओके, तो different dosage are there that are given under this program. तो ये प्रोग्राम के जो बेनिफिशियरी है मैंने आपको बताया कि प्रेग्नेंट वीमेन है, लैक्टेटिंग मदर्स है, चिल्ड्रन है. ओके, तो मदर के लिए जो हमें डोज देना है ओके वो है आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट का, जिसमें आयरन का प्रोपोर्शन है 100 मिलीग्राम. 100 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन है जो हमें देना है और फॉलिक एसिड है वो 0.5 मिलीग्राम है और यू कैन से 500 माइक्रोग्राम. ओके, तो ये दोनों कंपोनेंट होने चाहिए. ओके, इसे हम दे रहे हैं. इसे देने के बाद आफ्टर 3 to 4 months वी आर सपोज टू डू रिपीट इन्व्हेस्टिगेशन फॉर हिमोग्लोबिन. ओके, 3-4 महिन्यांनी पुन्हा हिमोग्लोबिन लेवल करायची. अँड इफ यू फाइंड आफ्टर गिविंग iron folic acid tablet daily, okay, this is daily supplementation. We are talking about daily supplementation of IFA, that is iron folic acid supplementation. okay, आपने देखा कि हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल आया है तो भी उसके बाद आगे जाके फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months यू आर सपोज टू कंटिन्यू आयर्न फॉलिक ॲसिड. ओके, तुम्ही आधी हिमोग्लोबिन लेवल चेक केलंय. ओके, प्रेग्नंट किंवा लॅक्टेटिंग मदरमध्ये ओके ते कमी आहे. ओके, कमी असल्यानंतर ट्रीटमेंटमध्ये वी स्टार्टेड विथ आयर्न फॉलिक ॲसिड सप्लिमेंटेशन. राईट, तुम्ही पुन्हा हिमोग्लोबिन रिपीट केलं, नॉर्मल लेवल आली, पण त्यानंतर सुद्धा यू आर सपोज टू कंटिन्यू इट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months. वाई इट इज इसेंशियल? बिकॉज दिस विल रेप्लेनिश द आयरन स्टोर. जो उसका आयरन स्टोर एग्जॉस्ट हुआ है वो वापस बिल्टअप होगा. ओके, सो दिस इज वन मोर थिंग. तो हाउ लॉन्ग, इफ एग्जामिनर आस्क यू हाउ लॉन्ग यू विल गिव आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन टू मदर्स ओके अंडर दिस प्रोग्राम, तो दिस विल डिपेंड अपॉन द रिस्पॉन्स और द प्रोग्रेस दैट द लेडी इज शोइंग. ओके, तो आपने देने के बाद जैसे जैसे उसका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल पे आएगा, जैसे उसका बॉडी रिस्पॉन्स करेगा उसके ऊपर ये ड्यूरेशन डिपेंड रहेगा. ओके, सो देर इज नो फिक्स्ड ड्यूरेशन.
ओके तो इसके लिए कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन वी आर नॉट हैविंग. Yeah, now let us try to understand this aspect. Okay, there is a need for newer program. Okay, why there was need for new program? तो अभी कौन से प्रोग्राम है ये आपको पता है. ओके, द फैक्ट इज दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स no marked improvement had been noticed in the magnitude of anemia. There are evidences that despite the pregnant women receiving 100 iron folic acid tablets free of cost, prevalence of anemia has still remained alarming. Okay, तो प्रेगनेंसी में 100 डेज के लिए कम से कम उसे आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट दिया गया था. ये देने के बाद भी जो एनीमिया का प्रॉब्लम है, डेफिनेटली इट इज अलार्मिंग इन इंडिया. ओके, research reveals that compliance rate of iron folic acid is as low as around 30%. ओके, तो इसका जो हमें compliance मिल रहा है वो बहुत कम है, वो 30% तक ही है. To overcome this, there was a strong felt need for focusing on social and behavior change communication at community level. Considering this, the present government decided to give a right impetus and focus for driving the existing program into a full-fledged mission. Hence, by political will to strengthen the existing mechanisms and foster newer strategies, Anemia Mukt Bharat was launched. Okay, तो ये सब हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए. जितने भी इंटरवेंशंस हमने किए हैं ये इतना इफेक्टिव नहीं हुए हैं इन कंट्रोलिंग दी प्रॉब्लम ऑफ एनीमिया. ओके, तो 2018 में और एक नया प्रोग्राम आया है इसके साथ, उसका नाम है एनीमिया मुक्त भारत. ओके, तो जस्ट रिमेंबर नेम ऑफ दिस प्रोग्राम. ओके, आपको ये प्रोग्राम का नाम पता होना चाहिए. ये क्यों लॉन्च किया दैट आई सेड राइट नाउ. ओके, तो ये क्यों लॉन्च किया ये अगर आप नहीं भी मेंशन करते हो डजेंट मैटर, लेकिन यू आर सपोज टू नो नेम ऑफ दिस प्रोग्राम. ओके, एनीमिया मुक्त भारत. Okay, so why this program has been designed? Okay, so this program specifically it has designed to achieve the targets. Okay, the targets which are given by World Health Assembly or simply you can say World Health Organization. Okay, तो कुछ targets दिए हैं countries को, उसे हमें achieve करना है, इसलिए दिस प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. ओके, तो सबसे पहला जो टारगेट है वो हमें 2025 तक अचीव करना है. ओके, सो टाइमलाइन फॉर दिस is 2025. There should be 50% reduction of anemia of चाइल्ड बेयरिंग एज और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. ओके, तो विमेन के ऊपर फोकस है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के विमेन है जहाँ पे हमें एनीमिया को कम करना है बाय 50%. ओके, सो दिस इज वन टारगेट. स्टिल देर आर अदर टारगेट्स ओके दैट वी आर सपोज टू अचीव. तो ये जो दूसरे टारगेट है 2022 तक हमें अचीव करने हैं. ओके, तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू टू सी दिस टेबल अँड कॅन यू फाइंड द कॉमन फॅक्टर. ॲप्टिट्यूड टेस्टला जसं तुम्ही बघता तर ह्याच्यामध्ये कुठली कॉमन गोष्ट या नंबरमध्ये तुम्हाला दिसते का? इज देअर एनी कॉमन नंबर दॅट यू कॅन फाइंड? टेक युअर ओन टाइम, एनी वन ऑफ यू जस्ट आन्सर मी सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड द टार्गेट व्हेरी इझिली. ये numbers they yes very right. Who said this? Yes, so it is just what you can observe is 18% से हमें रिडक्शन करना है. तो 18% जो है वो 6 साल के लिए है. ओके, सो द टारगेट दैट वाज गिवन फॉर 6 years. तो अगर हम इसे 1 साल में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो टारगेट दिया है ये क्या है? टू रिड्यूस प्रिवालेंस ऑफ एनीमिया बाय 3% पर ईयर. ओके, तो 1 साल में हमें 3% से ऐसे काम करते हुए 18% तक कम करना है. ओके, तो इसके लिए जो टारगेट ईयर दिया है वो 2022 तक है. ओके, तो यहाँ पे भी यू कैन सी डिफरेंट ग्रुप. ओके, चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट बॉयज़ है, एडोलेसेंट गर्ल्स है,
ओके, विमेन है, ओके, प्रेग्नेंट विमेन है, लैक्टेटिंग विमेन है, ओके। तो यहाँ पे सभी जगह पे जो आपको फिगर दिखाई देंगे वो 50 से ज़्यादा है, सिर्फ एडोलेसेंट बॉयज़ को छोड़ के, ओके। सो half of the Indian population is anemic. That's what we can conclude from this. ओके, तो ये प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज कौन हैं? तो ये प्रोग्राम के बेनिफिशियरी जैसे आपने पहले चार्ट में जो ग्रुप देखे वही ग्रुप ये बेनिफिशियरीज हैं। बेनिफिशियरीज का मतलब जब भी इंडियन गवर्नमेंट ये सर्विसेज दे रहा है, आयरन फॉलिक एसिड दे रहा है, तो ये किसे मिलने वाले हैं ड्रग्स, ओके। तो जो बेनिफिशियरीज हैं वो चिल्ड्रन है, ओके, 6 मंथ से लेके 5 साल तक के, ओके। दूसरा जो ग्रुप है, हमने ऑलरेडी ये ग्रुप डिस्कस किया है, ओके, 5 ईयर्स से 9 ईयर तक है। तीसरा जो है जिसमें हमने एडोलेसेंट बॉयज एज वेल एज गर्ल्स दोनों को लिया है, ओके, 10 to 19 ईयर्स, ओके। जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारे सामने वो है विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, वो है विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ओके। 20 to 49 यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। प्रेग्नेंट विमेन है, लैक्टेटिंग विमेन है। जो ग्रुप आप यहाँ पे देख रहे हो वही ग्रुप को हम बुलाएंगे ये प्रोग्राम के ये बेनिफिशियरीज है, ओके। और बेनिफिशियरीज पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कौन से प्रोग्राम के कौन से बेनिफिशियरीज हैं दैट यू आर सपोज टू नो, ओके। तो यहाँ पे चिल्ड्रन है, ओके, हमने बोला चिल्ड्रन में सभी हैं 6 महीने से लेके, तो इसमें हमने क्या किया, 6 महीने से लेके पूरे 49 ईयर तक सबको इंक्लूड किया है अलग अलग ग्रुप में, ओके। तो चिल्ड्रन का एक ग्रुप बनाया, एडोलेसेंट का दूसरा ग्रुप बनाया, ओके। विमेन जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, और अलग से हमें फोकस करना है प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग विमेन। लैक्टेटिंग विमेन में हमें जो इंक्लूड करना है यहाँ पे जो बेनिफिशियरीज है वो फर्स्ट 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी, ओके। तो पहले 6 महीने, ओके। what different interventions are there under this program, कौन कौन से interventions हमें करने हैं, ओके। तो interventions में there are different interventions, तो सबसे important हमें जो करना है that is iron folic acid supplementation, ओके। सो IFA must know abbreviation, आयरन फॉलिक एसिड हमें देना है, ओके। दूसरा जो हमने डीवर्मिंग देखा था वो भी यहाँ पे करना है, ओके, डीवर्मिंग विथ अल्बेंडाजोल, ओके, डीवर्मिंग करना है। तीसरा ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया, आपने देखा कि सिर्फ हम ड्रग दे रहे हैं, सिर्फ हम ट्रीट कर रहे हैं, उतना इफेक्टिवली नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, लोगों को एजुकेट करना है, उनका बिहेवियर चेंज करना है, ओके। तो उसके लिए जो तीसरा इंटरवेंशन है दिस इज IEC, okay, another abbreviation that you must know. This is information, education and communication, okay. So you are having one more chapter in your syllabus, communication for health education, okay. तो लोगों के साथ हमें communicate करना है, और किस तरह से communicate करना है, BCC, okay. So behavior change communication, ओके। तो इसका इम्पैक्ट इतना होना चाहिए कि लोगों का बिहेवियर चेंज होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि योर स्टूडेंट्स, ओके, एंड व्हाट टीचर्स टेल यू, व्हाट आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू कि स्टडी कंसिस्टेंटली, ओके। सो दिस इज द कम्युनिकेशन फ्रॉम माय साइड, ओके, एंड व्हेन इट विल चेंज युअर बिहेवियर दैट विल बिकम इफेक्टिव्ह, ओके। मी एकतर्फे सांगणं की तुम्ही कन्सिस्टंटली कंटिन्युअसली अभ्यास करत राहा ते होत नाही. आपली सवय काय आहे, प्रिलिम्स नंतर अभ्यास करायचा आणि सब्जेक्ट क्लियर करायचा, ओके. सेम थिंग हैपन्स इन कम्युनिटी, ओके. तो जो लोगों की हैबिट है, जो लोगों की सोच है, वो बदलना डिफिकल्ट होता है, ओके. तो यहाँ पे उसके लिए एनीमिया रिलेटेड हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मीडिया है, टेलीविज़न है, रेडियो है, ओके, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ओके. वी कैन प्रिपेयर डिफरेंट बुकलेट्स, पोस्टर्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, ओके. और यहाँ पे हमें लोगों को क्या अवेयर करना है, ओके. तो वीनिंग प्रैक्टिसेस, अप्रोप्रिएट वीनिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, एंड
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंजम्पशन ऑफ आयरन रिच फूड। ओके, तो जो आयरन रिच फूड है वो लेना है। ओके, उसके लिए हिम आयन के क्या सोर्सेस है वो आप लोगों को बता देंगे, नॉन हिम आयन के क्या सोर्स है, दैट वी आर सपोज टू टेल, दैट विल बी पार्ट ऑफ education of the people through communication and we are supposed to provide appropriate information। ओके, तो जो नेक्स्ट इंटरवेंशन है दिस इज इंटेंसिव, इसके ऊपर अभी हमें ज्यादा फोकस करना है। ओके, द फोर्थ इंटरवेंशन जो आता है तो स्पेशल फोकस हमें करना है हाई रिस्क ग्रुप में। ओके, तो जो भी एडोलेसेंट बॉयज है, जो भी एडोलेसेंट गर्ल्स है, जो भी प्रेग्नेंट विमेन है, इनके ऊपर हमें फोकस करना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, उनका स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग करेंगे तो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा। ओके, तो स्क्रीनिंग में एनुअल स्क्रीनिंग करना है, साल में एक बार इनका स्क्रीनिंग होना चाहिए टू बी स्पेसिफिकली एडोलेसेंट एज ग्रुप का। ओके, और उसके लिए जो डिवाइस हम यूज करेंगे, सो प्रिफरेबली इट शुड बी नॉन इन्वेसिव और वी कॅन से इट शुड बी डिजिटल हिमोग्लोबिनोमीटर। ओके, क्योंकि ॲडोलेसंट गर्ल्स बघितलं तर त्यांना खूप भीती असते, काय टोचणार हे करणार। ओके, सो आइडियली व्हाट इक्विपमेंट वी शुड हैव कि डिजिटल हिमोग्लोबिनोमीटर का यूज करके हम उनका स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग से हमें पता चलेगा वो एनेमिक है या नहीं है। ओके, तो दिस इज वन थिंग, आयरन फोर्टिफिकेशन। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आयरन एज वेल एज फॉलिक एसिड। ओके, यहाँ पे जो फोर्टिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वी आर सपोज टू इंक्लूड बोथ थिंग्स। इसमें हमें आयरन को भी लेना है, इसमें हमें फॉलिक एसिड को भी लेना है। और जो फूड हम यूज करेंगे, ईदर इट कैन बी एडिबल ऑयल्स, ओके, या फिर व्हीट फ्लोर। ओके, तो ये व्हीट फ्लोर या ऑयल्स में हमें आयरन या फॉलिक एसिड डालना है एंड दिस शुड बी गिवन टू वल्नरेबल एज ग्रुप। ओके, जैसे कि हमारे न्यूट्रिशन रिलेटेड कुछ स्कीम्स है, एक तो है आईसीडीएस। ओके, बाद में हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ओके, आईसीडीएस है या फिर एमडीएम है, मिड डे मील स्कीम है। ओके, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, जिसके थ्रू ये फोर्टिफाइड फूड दिया जाएगा वल्नरेबल बेबीज को। ओके, या फिर वल्नरेबल बच्चों को। तो ये नेक्स्ट आयरन फोर्टिफिकेशन है। एक और एक्टिविटी है विच इज कंसर्न विद दिस इज जो कॉर्ड क्लैंपिंग हम करते हैं, ओके, डिलीवरी के बाद, तो उसे हमें डिले करना है। आपको जब तक वो कॉर्ड का पल्सेशन हो रहा है, ओके, तब तक उसे क्लैंप नहीं करना है। सो यू आर सपोज टू वेट टिल सीजेशन ऑफ कॉर्ड पल्सेशन। ओके, सो अराउंड इट मे टेक अराउंड 3 मिनट्स। ओके, तो ये कॉर्ड क्लैंपिंग को डिले करना है, किसके लिए, एनीमिया का इंटरवेंशन है ये। ओके, एंड मलेरिया, जहाँ पे मलेरिया एंडेमिक है वहाँ पे हमें मलेरिया के लिए स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट के सर्विसेज देने हैं। ओके, तो दीज आर फ्यू इंटरवेंशंस। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट की इंटरवेंशंस कौन से है दैट वी विल सी। ओके, तो यहाँ पे की इंटरवेंशंस में सबसे पहले है तो हमें आयरन फॉलिक एसिड देना है। ओके, जो पहला ग्रुप यहाँ पे आप देखते हो 6 महीने से 5 साल तक। ओके, तो इनको हमें लिक्विड फॉर्म में देना है। आयरन फॉलिक एसिड का साइरप आता है वो देना है। कब देना है, बाय वीकली। ओके, तो हफ्ते में 2 बार। ओके, और इसका जो डोज है 1 ml आपको देना है इनको। ओके, इसमें 20 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन है और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड है। ओके, ये काम किसका है, अभी और एक वर्कर के बारे में आपको सीखना है जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। बहुत सारे वर्कर्स है, उसमें एक है आशा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ओके, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये जो आशा का काम करने वाले लोग हैं, दैट पीपल आर सपोज टू गिव दिस IFA सायरप, ओके, टू चिल्ड्रन। मॅडमच्या लेक्चरची लिंक आली आहे का तुम्हाला, रुमन? रुमन? No. Okay, okay. So I will just finish. Very small part is left. Next जो ग्रुप है 5 to 9 years का ग्रुप है। ओके, तो इन्हें हमें वीकली देना है। ओके, जो छोटे बच्चे थे इन्हें हम बाई वीकली दे रहे थे, यहाँ पे हमें वीकली देना है आयरन फॉलिक एसिड। ओके, अभी आगे जाके वी विल गिव इट इन टैबलेट फॉर्म।
ओके तो इन्हें हमें टैबलेट देना है, एक टैबलेट देना है, ओके जिसमें 45 मिलीग्राम है एलिमेंटल आयन और 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड है। ओके तो एमसीक्यू है, ये चीज़ें पूछ सकते हैं, आई डोंट नो। ओके बट एटलीस्ट वोट यू आर सपोज टू नो, एक सिंगल टैबलेट है जो हमें वीकली देनी है 5 to 9 ईयर्स। ओके तो ये बच्चे स्कूल में अगर जाते हैं तो स्कूल के टीचर्स उन्हें देंगे। ओके अगर स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे आशा वर्कर उन्हें आंगनवाड़ी सेंटर लेके आएगी और जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स है ओके वो उन्हें देंगे। ओके नेक्स्ट ग्रुप एडोलेसेंट में बॉयज़ भी है गर्ल्स भी है। ओके 10 to 19 ईयर्स का ग्रुप है हमारे पास। ओके तो यहाँ पे डोज का थोड़ा सा करेक्शन है, ये 60 मिलीग्राम नहीं, हमें 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयन देना है और 500 माइक्रोग्राम। तो आगे जितने भी ग्रुप है उनके लिए डोज सेम है। एलिमेंटल आयन जो है 100 मिलीग्राम देना है। ओके और फॉलिक एसिड है यू कैन से 500 माइक्रोग्राम और यू कैन से 0.5 मिलीग्राम, ईदर और। ओके तो इन्हें भी हमें एक टैबलेट देनी है। ओके सो वी आर सपोज टू गिव इट वीकली। ओके तो WIFS के बारे में हमने देखा था, तो वीकली आयन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे भी सेम थिंग, जो स्कूल में जा रहे हैं उनको स्कूल के टीचर्स देंगे, जो आउट ऑफ स्कूल है उनको आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स। नेक्स्ट में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो वुमेन है, नॉन प्रेग्नेंट है, नॉन लैक्टेटिंग है। ओके 20 to 49, यहाँ पे थोड़े एज ग्रुप डिफरेंट है। ओके एज ग्रुप को आपको ध्यान में रखना होगा। इन्हें भी हमें देंगे वीकली 1 टैबलेट ऑफ आयन फॉलिक एसिड containing 100 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयन एंड 500 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड। तो ये हमें देना है। दिस कैन बी गिवन बाय आशा। ओके तो ये किसका काम है? आशा का काम है। प्रेग्नेंट वीमेन है। ओके तो यहाँ पे प्लीज पे अटेंशन, अभी इन्हें हम वीकली नहीं देने वाले हैं। ओके इनको भी हमें एक टैबलेट देना है आयरन फॉलिक एसिड का, लेकिन वी आर सपोज टू गिव इट डेली। ओके और ये कौन दे सकता है? इट कैन बी गिवन बाय ANM। ओके तो सेंटर्स में, सब सेंटर्स में जो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है, जो ANM का काम करते हैं वो दे सकते हैं, या फिर आशा वर्कर्स। ओके इनका काम है इन्हें डेली देना। ओके कितने दिनों तक हमें देना है? सो इट शुड बी कंटिन्यूड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, मिनिमम 180 days। ओके मिनिमम 180 days should be given। लैक्टेशन सेम डोज सेम क्राइटेरिया, 180 days आफ्टर पोस्टपार्टम। ओके 180 days का क्राइटेरिया है, डेली देना है। ओके तो 5 साल से पहले हमने बाई वीकली दिया, उसके बाद 5 to 9 ईयर्स एडोलेसेंट्स। ओके नॉन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो विमेन है उन्हें हमें वीकली दिया। अगर हमारे पास प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग विमेन आती है तो उन्हें हमें डेली देना है। ओके ड्यूरेशन अंडर दिस प्रोग्राम इज 180 days ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 180 days ड्यूरिंग लैक्टेशन। एंड लास्ट थिंग इज डीवर्मिंग। डीवर्मिंग में कौन सा ड्रग है, कितना डोज है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो हमने बोला था वहाँ पे बाय एनुअल हमें देना है, साल में 2 बार। तो 2 डेज हैं जो फिक्स्ड हैं इंडिया में, 10th February और 10th of August। ओके 10th February और 10th of August को हमें ये देना है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशनल anemia. So don't forget different programs concerned with the nutritional anemia. Okay, thank you for your patient listening.